محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیٹھ جاؤ. آج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی غور و فکر کرنے والی باتیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پہلے مجھے خود اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام ماؤں بہنوں کو اس پر خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نصیحت تو بہت سنتے ہیں لیکن عمل سے اگر خالی ہو تو وہ بیکار ہو جاتا ہے. تو ہم نیت یہ کریں، پہلے ہی نیت کر لیں کہ اللہ آج میں جو بھی سنوں گی انشاءاللہ اس کو اپنے پلو میں باندھ کر کے لے جاؤں گی اور عمل کروں گی اس کے اوپر انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان میں نے تجھے بے وجود سے وجود میں لا کر کے بھلا چنگا انسان بنایا، اچھی صحت دی، عقل دی، تجھے ساری چیزیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ ساری چیزیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان سے سوال کر رہے ہیں کہ انسانوں تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے؟ آخر تم کیوں اتنے غافل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے اچھی صحت دی، اچھی جوانی دی، اچھی توانائی دی، ساری چیزوں سے نوازا، عقل سے نوازا، دنیا کی ساری چیزوں پر ہے انسان تجھے حکمرانی دی. آخر تجھ پر بھی کسی کی حکمرانی ہے؟ کبھی غور و فکر کیا انسان تو؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے، تیرے ستار رب سے، تیرے غفار رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے؟ آخر کیوں ایسا ہے؟ انسان تو کب تک غفلت کی زندگی گزارے گا؟ اور رب کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی تیری عمر 50 سال ہو گئی اب تیری توبہ نہیں. رب کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی تو نے بڑی نافرمانی کر دی اب تیرا کوئی راستہ نہیں، تیری کوئی معافی نہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پیارا فرمان ہے اور فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السما، کہ انسان تو یہ سوچتا ہے غفلت میں رہ کر کے کہ میں اتنی عمر کو پہنچ چکی ہوں، کیا میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ مجھے معاف فرما سکتے ہیں؟ تو رب کریم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ لو بلغت ذنوبک عنان السما، کہ اگر تیرے گناہ دنیا کی ساری جگہوں کو بھر دے، یعنی آسمان و زمین کے درمیان جو خالی جگہ ہیں ان جگہوں کو بھر دے اور بندہ آ کر کے میرے دربار میں مصلی بچھائے اور مجھ سے معافی مانگے، دو آنسو بہا لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. کتنے بڑے کریم رب ہے. آخر ہم کب تک یہ غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک اپنے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے؟ آخر وہ دن کب آئے گا کہ انسان اپنے رب کی حقیقی معنی میں عبادت کرنے لگ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان تباہی کے دہانے پر ہے، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے اور ڈوبنے والا ہے، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے تیری پیروی کی، تجھ پر ایمان لائے. صرف بات یہاں پر نہیں چھوڑا، تجھ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اگر بات یہیں تک محدود ہو جاتی، بات یہیں تک رک جاتی کہ جو تجھ پر ایمان لائے وہ کامیاب ہے، تو آج ہمارے اوپر نہ نماز کا ہمیں کوئی ٹینشن ہوتا، نہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کسی چیز کی کوئی ٹینشن ہمیں نہیں ہوتی.
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे जमाने की कसम, देखे तो सही कसम कौन से जमाने की खा रहे हैं। आज हमारे सामने सबक आमोज वाकयात अगर सुनाए जाते हैं, हमें बताया जाता है, तो सहाबी का वाकया बताया जाता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। हालांकि वो जमाना कितना पाक होगा, वो जमाना कितना पाक होगा, आज इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। का इंसान खसारे में, कैसे खसारे में इंसान? इंसान माँ के पेट से पैदा हुआ, बोली नहीं थी, अल्लाह ताला ने बोली दी, भला चंगा इंसान बना दिया, अब ये कमा रहा है, खा रहा है, अच्छी खासी दौलत को इकट्ठा कर रहा है, ये कैसे खसारे में है? ये हवाओं में उड़ रहा है, ये कैसे खसारे में है? ये पानी पर लोहे को तैरा रहा है, ये कैसे खसारे में है? अरे अल्लाह के बंदे और बंदियों, उड़ने वाले तो परिंदे भी हवा में, उड़ने वाले तो परिंदे भी हवा में, मछली भी तो पानी में तैरती, क्या कामयाब हो गई? ऐ इंसान तो खसारे में है। इंसान बुलंदी पर चला गया, हवाओं से बात कर रहा है, आसमानों की बुलंदी तक पहुंच गया है, लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब बेचारा, कोई बेवा, कोई यतीम उसके अड़ोस पड़ोस में भूख से बिलबिला रहा, उसे पता नहीं, खसारे में नहीं तो और क्या है। आज इंसान क्या सोच बैठा है कि मेरे अच्छे घर हो गए, अच्छा बंगला हो गया, अच्छी खासी जिंदगी हो गई, अच्छा खासा कारोबार हो गया, मैं कामयाब हो गया। नहीं, अल्लाह के बंदे बंदियों, कैसे कामयाब हो गए? अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में तो जाना है, उसने जो जिंदगी दी है, उसने जो जवानी दी है, इतने सारे असबाब हमारे लिए इकट्ठा किया है, इतनी सारी दुनिया हमारे काबू में कर दिया है, यही इंसान तो है जिसकी हुक्मरानी में अल्लाह ताला ने सारी चीजों को दे दिया है। इंसानी है तो जो शेरों पर हुकूमत करता है, शेरों को जिधर चाहे उधर घुमाता है। इंसानी है तो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके कब्जे में लूहे वो कर दिया है, जिधर चाहे मोड़ के कभी हवा में उड़ा रहा है, कभी रोडों पे चला रहा है, कभी पानी पर तैरा रहा है। ये अल्लाह ताला ने हुकूमत नहीं दी तो और क्या दी है? क्या इन हुकूमतों से हमारी कामयाबी की निशानी छलक रही है? नहीं, कामयाब वही लोग हो सकते हैं जो मोहम्मद का दामन पकड़ेंगे। कामयाब वही लोग हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी में बसाएंगे। कामयाब वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह के रसूल के फरमान को, अल्लाह के रसूल के हुक्म को अपनी जिंदगी में बसाएंगे, अपनी जिंदगी को अल्लाह के रसूल के हुक्मों से वाबस्तगी में लाएंगे, वाबस्ता करेंगे, अपनी जिंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में, इश्क में खर्च कर देंगे, वही लोग कामयाब होंगे। हमने तो क्या सोच लिया है कि सारी चीजें हमारी दुनिया है, सारी चीजें हमारी दुनिया है, जो करना है दुनिया के अंदर ही कर जाना है, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है, क्या होने वाला है? नहीं नहीं माओ बहनों, ये बातें अगर जहन में है तो उसे निकाल दें। बहुत बड़े मजजूब हजरत बहलूल दाना बहुत बड़े मजजूब हैं, अल्लाह के वली हैं। मजजूब जो होते हैं ना, इनकी अलग एक दुनिया होती है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये पागल है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दीवाना है, इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, वाक़ियतन उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो पागल नहीं होते हैं। वो अल्लाह के इश्क में ऐसे धुंधला हो जाते हैं, अल्लाह के इश्क में ऐसे ही नहिमाक हो जाते हैं, गोया दुनिया उसे पागल तस्वुर करने लगती है। और हम ये समझते कि ये वाक़ियतन पागल है। ऐसे ही एक मजजूब था हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मजजूब अल्लाह के वली, कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। बादशाह का गुजर हुआ, बादशाह ने कहा, बहलूल यहां क्या कर रहे हो? जरा आओ कभी हमारे शहर के तरफ, हमने शहर को बड़ा सजाया है, बड़े कुमकुमे लगाए हैं, शहर की रौनकें देखो, आओ हमारे महल में
तुम्हें चाय पानी कराएंगे, नाश्ते वगैरह कराएंगे, खाना वगैरह खिलाएंगे, आओ कभी हमारे महल की तरफ, हमारे शहर की तरफ। तो बहलुल दाना ने जो बात कही ना, वो गौर फिक्र करने के काबिल है, पल्लू बांधने के काबिल है। बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया कि बादशाह, तू कह रहा है चलो शहर को मैंने सजाया है, जरा तू बता दे, शहर के सारे लोग यहां आ रहे हैं तो मैं शहर जाकर के क्या करूंगा? शहर के सारे लोग यहां आ रहे हैं, मैं शहर जाकर के क्या करूंगा? फिर बहलुल दाना ने जो आगे बादशाह को नसीहत और सबक दी है वो भी सुनने के काबिल है। बहलुल दाना ने यूं फरमाया, बादशाह जरा तू भी बता दे, तुझे भी तो इधर आना है, तूने शहर को सजाया, शहर में कुमकुमे लगाए, शहर को अच्छी खासी बना दी, अब तू बता, तुझे भी तो इधर आना है, इधर के लिए कुछ तैयारी भी किया है? बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गए कि बहलुल दाना ने बड़ी जबरदस्त और बड़ी सबक आमोज बात कह दी बहलुल दाना ने। और उसी बहलुल दाने का वाकया है, इमाम हारून रशीद बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनके जमाने में यह मजजूब था। बहुत बड़े बादशाह हारून रशीद गुजरे हैं। दरिया दजला के किनारे पर यह बहलुल दाना नामी शख्स मिट्टी के रेत से, जैसे वो बच्चे पैर डाल करके मिट्टी ऊपर से थपथपा करके घर बनाते हैं ना, ऐसे ही वो मजजूब खेल रहा था, ऐसे ही वो मजजूब अल्लाह के इश्क में डूबा हुआ खेल रहा था। तो बादशाह हारून रशीद अपनी बेगम के साथ सैर व तफरीह के लिए निकले हुए थे। मलिका जुबैदा नाम थी उसका नाम मलिका जुबैदा। तो मलिका जुबैदा वहां से गुजर रही थी। तो अव्वलन तो बादशाह हारून रशीद ने उन मजजूब से यानी बहलुल दाना से पूछा कि बहलुल क्या कर रहे हो? कि अजी घर बना रहा हूं और जन्नत का घर बना रहा हूं, जन्नत का महल बना करके बेच रहा हूं। तो कितनी कीमत की है? तो उसने कहा कि 10 रुपए की है, सेल लगी हुई है, बड़ा सस्ता सौदा है। तो बादशाह ने कहा ये पागल है, कौन भला जन्नत का घर दुनिया में बना के बेचता होगा? उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे चल गए। मलिका जुबैदा, बहलुल क्या कर रहे हो? कि जन्नत का महल बना रहा हूं और बेचते भी हो? कि हाँ बेचता भी हूं। कितने का? कि 10 रुपए का। तो मलिका जुबैदा ने अपने पर्स अपने जेब में उस जमाने के एतबार से जो भी होगा हाथ डाले, 10 दिरहम कोई बड़ी कीमत नहीं थी, निकाल करके बहलुल दाना को दे दिया। तो बहलुल दाना वो पैसे लेकर के दरिया के अंदर फेंक दिए, कहा कि मलिका जुबैदा के लिए घर मैंने तैयार कर दिए और उसमें ताला लॉक करके छोड़ दिया, जाओ तुम्हारे लिए जन्नत में महल बन गया, जन्नत में महल बन गया। अभी माजरा रात का देखिए, बादशाह अपने महल में पहुंचते हैं, रात का खाना वगैरह होकर के बादशाह जब सोते हैं तो दूसरी ख्वाब की दुनिया में बेदारी होती है। ख्वाब की दुनिया में जाते हैं बादशाह और जन्नत की सैर हो रहा है ख्वाब में कि अच्छे अच्छे महल नजर आ रहे हैं। उन सारे महलात में एक महल बड़ा खूबसूरत नजर आया, उन सारे घरों में एक घर बड़ा खूबसूरत नजर आया। बादशाह ने जाकर के देखा कि घर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जब नजदीक पहुंचा तो देख रहा है कि उसके मलिका का नाम लिखा हुआ है, मलिका जुबैदा। तो महल के अंदर दाखिल होना चाहा बादशाह कि मैं महल में जाकर के देखूं, ये मेरी मलिका का महल है, जाकर के देखूं तो सही कैसी बात, बाहर से बहुत खूबसूरत है, अंदर से क्या मनाजिर है, जाकर के देखूं। तो अंदर जाने लगे तो फरिश्तों ने, जो दरबान था उस दरबान ने रोक लिया, कहा कि नहीं, ये आप नहीं जा सकते हैं इसमें। तो बादशाह ने कहा भाई ये मेरी बीवी है मलिका जुबैदा, मेरी खातून है, मेरी मलिका है, मैं क्यों नहीं जा सकता हूं? कहा कि वो मलिका होगी आपकी दुनिया में, और दुनिया के कायदे अलग है, यहाँ के कायदे अलग हैं। तो इतना कहना था, बादशाह का आंख खुल गया, बादशाह का आंख खुल गया। तो फौरन अपनी मलिका को बेदार करता है कि मलिका, ए जुबैदा जरा बेदार हो जा, कौन से अमल तूने किए हैं? कहा क्या हुआ? कि जन्नत में मेरी सैर हुई, ख्वाब के अंदर मैं जन्नत को देखा, सैर हुई, बड़े खूबसूरत मनाजिर नजर आए, एक महल था, उस महल के ऊपर मलिका जुबैदा लिखा हुआ था, जरा बता तो सही कौन सा अमल करती है तू, मैं भी वो अमल करके मेरे लिए भी जन्नत में एक महल बनाऊंगा।
तो मलिका जुबैदा कह रही है कि मैंने कोई अमल ऐसा किया नहीं है, मैं रोजाना की तरह नमाज पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, अल्लाह के राह में जो खर्च करना होता है वो खर्च करती हूँ, उसके अलावा मेरी कोई ऐसी खास अमल तो नहीं है। लेकिन हाँ, कल शाम के वक्त हम दोनों जो तफरीह के लिए निकले थे दरिया दजला के किनारे पर, वो बहलूल दाना नामी जो मजजूब है उससे मैंने 10 दिरहम का एक घर खरीदा था, हो सकता है वही घर हो सकता है वही घर हो। तो अब बादशाह हैरान और परेशान है, सुबह भी जल्दी नहीं हो रही है, वो इंतजार की घड़ी जल्दी खत्म नहीं होती है ना, तो सुबह भी जल्दी नहीं हो रही। सुबह होते ही बादशाह ने, अब शाम होना था, फिर तफरीह के लिए निकलते, बादशाह इंतजार में है कि कब शाम होगा, फिर हम तफरीह के लिए निकलेंगे। अंदर ही अंदर दिल से दुआ भी कर रहा है, मुसलमान बादशाह था, दुआ भी कर रहा है कि अल्लाह किसी तरह सेटिंग हो जाए, वो बहलूल दाना वही मिल जाए और वो घर बना रहा हो 10 दिरहम में फिर मुझे मिल जाए। शाम का वक्त हुआ, दूसरे दिन ऐसे ही तफरीह के लिए घूमने के लिए निकले थे, दिल बहलाने के लिए निकले थे, लेकिन उस दिन कसदन इरादतन यानी इरादा करके निकले घर से कि मैं निकलूं और वो बहलूल दाना मिल जाए, मेरा काम हो जाए। चुनांचे शाम का वक्त हुआ, अपनी मलिका जुबैदा के साथ निकला दरिया दजला के किनारे, तो देखा कि बहलूल बैठा हुआ है। अंदर ही अंदर खुश हुआ बादशाह कि चलो काम बन गया। अब नजदीक गया, डर भी लग रहा है कहीं मामला बदल न जाए। तो बादशाह कह रहा है, बहलूल क्या कर रहे हो? कि जन्नत का महल बना रहा हूं। कि बेचते भी हो? कि हाँ बेचता भी हूं। अब बादशाह जेब में हाथ भी डाल रहा है, बात भी कर रहा है कि कितनी कीमत है? तो बहलूल दाना कह रहा है, तेरी पूरी सल्तनत में से आधी कीमत है। कल तो 10 दिरहम की थी, आज तेरी पूरी सल्तनत का 2 हिस्सा करके एक हिस्से की कीमत है। एक महल की कीमत तेरी पूरी आधी सल्तनत है। तो बादशाह हैरान हुआ, परेशान हुआ, कहने लगा कि बहलूल कल तो 10 दिरहम का था। तो बहलूल दाना ने जो जवाब दिया ना वो सुनने के काबिल है। बहलूल दाना ने कहा, बादशाह कल बिन देखे सौदा था, आज देख करके आए हो। कल बिन देखे सौदा था, आज देख करके आए हो। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? बोले भाई देखा नहीं देखा है। अल्लाह के रसूल को देखा नहीं देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों इन सहाबाओं का दौर देखा नहीं देखा। फिर भी हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, फिर भी अल्लाह की इबादत करते हैं कि मेरा अल्लाह इबादत के सिवा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं अल्लाह के सिवा इबादत के लायक और काबिल। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और नबी है, हम सच मानते हैं और यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला बिन देखे सौदे पर हमारे लिए क्या तैयार कर रखा होगा। अगर हम यहाँ गफलत की जिंदगी गुजारेंगे कि नैने कोई दिन खाबम देखो जन्नत कोई महल मिली जी थी तब इबादत करवे फिर बढ़िया से, तो वो थोड़ी होने वाला है, नहीं होने वाला है ना। आज बिन देखे इबादत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला वो अता फरमाएगा हमें इस दुनिया से। आज जन्नतियों के बारे में आता है कि अदना सा जन्नती को जो हिस्सा मिलने वाला है ना इस दुनिया से, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, मुरबल्ला की पूरी बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं कि इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी हमें जन्नत अता फरमाएगा अल्लाह ताला एक अदना सी जन्नती को। अब जिन्होंने इबादत की होगी, अल्लाह तबारक व तआला से लव लगाया होगा, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बत हासिल की होगी, उसका क्या माजरा होगा, क्या आलम होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर बात चल रही थी वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान सारे के सारे खसारे में हैं सिवाय उनके जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामे रखा और नेक आमाल किए। बात यहीं तक नहीं पहुंची कि ईमान ले आएंगे, नमाज पढ़ लेंगे, नेक आमाल सदकात खैरात ज़कात वगैरह निकाल करके अपने आप को मुकर्रब बना लेंगे। बात यहीं तक नहीं है, बात और आगे भी है। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, इन सारी चीजों के साथ यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन को थामने के साथ, नेक आमाल करने के साथ साथ वतवासौ बिल हक़्क़ि, हक के पैरोकार बनना है। जहां कहीं ना हक की बात चल रही हो, अगर हमारे बस में है तो रोकना है, बस में नहीं है तो वहां से निकल जाना है। यहां तो हम तमाशा बना करके देखते रहेंगे। किसी गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा हो पंचायत में तो तालियां बजाएंगे। बर्दाश्त हो रहा है तो वहां रहे, अगर रोकने की ताकत है तो रहे, नहीं रोकने की ताकत है वहां मत बैठे, चले आए।
किसने आपको कहा है कि वहां जाकर के आप अपना हाजिरी बनाए, अपना चेहरा दिखाएं? किसने कहा? वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। कोई बला मुसीबत आफात आए उसके ऊपर सब्र से जमे रहना, उसके बाद कामयाबी मिलने वाली। आज हमारे ऊपर छोटी छोटी मुसीबत, छोटी बलाएं आ जाए तो हम आओ वावेला करने लग जाते हैं, हम अपने दोस्तों यारों में उसके गिले शिकवे करने लग जाते हैं। आखिर माजरा क्या है? चलो जाओ यहाँ से, ले जाओ उसको। सबका जहन उधर ही भटक रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बात चल रही थी वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। हम तो नमाज के अंदर भी खड़े होते हैं, आसानी से पढ़ लेते हैं, कभी हमने इस बात के ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया कि अल्लाह ताला ने क्या पता इस आयत में क्या कह गए हो, अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या हमको फरमा गए हो। इंसान तो यही सोचता है ना, जिंदगी भर गुनाह कर लेंगे, कहीं जलसा जुलूस होगा, 10, 20, 50 हजार रुपए दे करके जन्नत खरीद लेंगे। अरे भाई, जन्नत इतना सस्ता थोड़ी हो गया है। 70 साल 80 साल की बूढ़ी माई सुमैया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कह दीजिए 70-80 साल की बूढ़ी माई है, ईमान की खातिर अबू जहल जैसे बदबख्त ने उसको अपने दरबार में बुलाया, कहा सुमैया अल्लाह का नाम लेना छोड़ दे, सुमैया मोहम्मद का पीछा छोड़ दे, मैं जो कह रहा हूं वो बात मान ले। सुमैया ने कहा कि जिसने मोहम्मद का कलीमा पढ़ लिया है, जो मोहम्मद के इश्क में डूब गई है, वो भला क्या तेरी बात मान सकती है? नहीं मान सकती तेरी बात। अबू जहल ने अपने दरबारियों को कहा कि बड़ा सा डेग लाया जाए, उस डेग में पानी भर करके सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बड़ी सहाबिया में से हैं, उनको गिरेबान पकड़ के, गर्दन पकड़ के उस पानी में डुबोए रखा। अबू जहल को लगा कि अब ये मर गई है, उसके गर्दन को उठा करके कहती है सुमैया अब क्या इरादा है? हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बात कही वो सुनने के काबिल है। कहा कि अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, ए बदबख्त तेरे थोड़ी देर पानी में डुबाने से क्या मैं मर जाऊंगी? हम तो आसानी से कह देते हैं कि ईमान वाले हैं। भाई, ईमान के पीछे कितनी कुर्बानी दी है, ईमान के पीछे कितनी मेहनतें हुई है, ईमान के पीछे कितने सारे लोगों ने अपने बीवी को, बेवा, बच्चों को यतीम कर दिए, फिर जाकर के हम तक ईमान पहुंचा। आज हम फख्र करते हैं कि ईमान वाले हैं। क्या हक अदा किया हमने? एक अकेली सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर क़यामत के दिन खड़ी हो गई कि उम्मत की माँ, उम्मत की औरतों, जरा बताओ ईमान का क्या हक अदा किया है? मैंने तो हक अदा किया था पानी में, अबू जहल जैसे नापाक ने मेरे गर्दन को डुबाए रखा पानी में, फिर भी मैं अपने ईमान से पीछे नहीं हटी। तुम बताओ तुमने क्या हक अदा किया है? क्या जवाब देंगे? है कोई जवाब हमारे पास? कोई जवाब नहीं है। अभी वक्त है हमारे पास, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, जो वक्त बचा हुआ है, जो जिंदगी गुजर गई गफलत में, अल्लाह ताला से माफी मांग ले, आज ही से तहिया करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। आज आप में से बताएं कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? नेक काम के लिए हाथ उठाने में शर्मिंदगी कोई बात नहीं। बताए कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमेशा जमे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अब देखें, आपके हाथ में है, आपके जो खाविंद हजरात हैं उनको सुधारना और सीधे राह पर लाना। आप चाहें ना तो अपने खाविंद को अल्लाह का वली बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने बच्चे को अल्लाह का वली बना सकते हैं, आपके हाथ में है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। इनकी वलीउल्लाह होने में इनकी माँ का हाथ था, शायद कभी सुनाया हो, मुझे ध्यान नहीं है। इनकी वालिदा का हाथ था, नहीं सुने, सुन लीजिए, कोई हरज की बात नहीं है। वालिदा का हाथ था, कुतुबुद्दीन नाम था उनका। कुतुबुद्दीन जब नौउम्री में थे, यानी बिल्कुल लड़कपन के जमाने में, तो मदरसा जाते, अपने उस्ताद से सबक पढ़ते, घर पहुंचते तो माँ पूछती बेटा उस्ताद ने क्या सबक पढ़ाया?
کہ माँ उस्ताद ने पढ़ाया कि अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है, अल्लाह मारता है, अल्लाह जिलाता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, जो चीजें मक्तबा में मदरसे में पढ़ाई जाती है। तो माँ ने कहा कि हाँ बड़ा अच्छा मौका है, अब यहाँ से इसकी तरबियत करनी है मुझे। तो माँ ने कहा कि बेटा तो एक काम करो, अब कल जो मदरसे से आओगे पहले मुसल्ला बिछाना है, 2 सजदे करने हैं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने हैं, हाथ फैला करके फिर अल्लाह से मांगना है जो उस्ताद ने सिखाया है, जो उस्ताद ने तुमको पढ़ाया था मदरसे में, वही सबक आकर के मुसल्ले पर अल्लाह के सामने उसी तरीके से मांगना है जिस तरीके से उस्ताद ने सिखाया है। अल्लाह ताला जरूर तुझे खिलाएगा, जो खिलाने वाली जात अल्लाह की है। अब देखिए यहां से जहन साजी हो रही है, जहन बनाया जा रहा है। चुनांच मदरसे से घर आए, मुसल्ला बिछाए, छोटा सा बच्चा था, जिस तरीके से माँ ने पढ़ा दिया पढ़ लिया। मुसल्ला बिछा करके 2 रकात पढ़ ली, उसके बाद अल्लाह से मांग रहा, अल्लाह रोटी खिला दे, अल्लाह रोटी दे दे, अल्लाह तू ही खिलाने वाला, मेरे उस्ताद ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, माँ भी कह रही है। इस तरीके की दुआ मांग ली, छोटे बच्चे जिस तरीके से मांगते हैं। और फिर जब दुआ पूरी हो गई तो माँ ने कहा बेटा मांग लिया अल्लाह से? कि हाँ माँ मांग लिया मैंने अल्लाह से। कि जा देख नियामत खाने में रोटी दे दिया अल्लाह ताला ने। हालांकि रोटी बना करके कौन रखी थी नियामत खाने में? बोलिए, माँ रखी थी बना के। कौन रखी थी? जहन साजी कैसे हो रही वो देखें जरा, माँ रखी थी बना करके। इसी तरीके से मामला चलता रहा, जहन साजी हो गई। एक दिन अचानक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा किसी फंक्शन या शादी वगैरह में चली गई और भूल गई कि बेटे के लिए रोटी बनाना है। अब देखे यहाँ माँ की ममता कुछ अलग ही होती है ना। तो शादी में गई और फंक्शन में इस तरीके से मुनहमिक और बिजी हो गई कि पता ना चला कि मेरे बेटे के लिए रोटी बनाने का वक्त आया है। वक्त गुजर गया, अब वहां परेशान है, हैरान है कि मैं क्या करूं। आज सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। मेरा बेटा आएगा मदरसे से, मुसल्ला बिछाएगा, 2 रकात पढ़ेगा, अल्लाह से मांगेगा, उसको रोटी अगर नियामत खाने में नहीं मिली तो उसके अकीदे पर मेरा किया धरा पे पानी फिर जाएगा। उसका अकीदा खराब हो जाएगा कि अल्लाह कुछ देता नहीं है, ये माँ झूठ बात बोल रही है, उस्ताद झूठ बोल रहा है। फिर अंदर ही अंदर दिल से दुआ कर रही है कि रब्बा सारे मेहनत पर पानी ना फेरियो, आज मेरे बेटे का लाज रख लीजिए, मेरे बेटे की अकीदे का लाज रख लीजिए। चुनांच माँ परेशान है, इसी परेशानी में दौड़ती भागती हुई आई, देखी क्या कि बच्चा सो रहा है आराम से। अब और परेशानी बढ़ गई। माँ होती है ना कि बेटा हमार की पता भूखले सुतला उठावे कितना गाड़ी बोलती क्यों करती अल्लाह जाने, जो आजकल हमारे हालात हैं। पहले तो आते ही ठंडा सांस लेकर के पहले रोटी बनाई, रोटी बना करके नियामत खाने में कायदे के मुताबिक रख दी। फिर बच्चा को उठा रही कि बेटा कुतुबुद्दीन बेदार हो जा, आज मैं शादी में चली गई थी तो आया, खाना नहीं खाया होगा, भूख लगी होगी, उठ जा बेटा जल्दी खाना खा ले। कहा माँ मैंने तो खाना खा लिया है, माँ मैंने तो खाना खा लिया है, माँ मैंने आज वो रोटी खाई है जितने दिन तूने मेरी खिदमत की, जितनी रोटी तूने बनाई, तेरे हाथ से कई गुना लजीज वो रोटी थी और कितना ज्यादा मजा था उस रोटी में, मैं बयान नहीं कर सकता। माँ मैंने खाना खा लिया है। अब माँ अंदर ही अंदर से हैरान परेशान है। अब गैब से आवाज आती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी दुआ जो निकली थी, तेरी जुबान से जो बात निकली थी, उसका लाज रख लिया गया और आज इसको जन्नत का रोटी खिलाया गया है। हाँ, माँ चाहे तो अपने बच्चे को वलीउल्लाह बना सकती है, एक औरत चाहे तो अपने खाविंद को अल्लाह का वली बना सकती है। यकीन जाने आप, इससे पहले अमीर साहब ने शायद ये वाकया सुनाया भी होगा कि वो एक अल्लाह का वली था ना, बहुत अपने आप का अपना दावा करता था, मैं बहुत बड़ा वलीउल्लाह हूँ, बहुत बड़ा अल्लाह का वली हूँ। तो औरत ने कहा कि अल्लाह का वली छा? हाँ अल्लाह का वली छी। हमार वजह बनला कुछ पता छो तोरा कि ते चुप रहो, राती तहज्जुद हमें पढ़े छी, ते सुती रहे फोत नींद मारे छा, तोर वजह हमें अल्लाह का वली बनला सा? नहीं, हमें अपन बलबूता बनला सा, हमें तहज्जुद पढ़ाई, हमने कुरान तिलावत कहीं, एक नमाज हमर न छूटे, हमें अपने अल्लाह का वली बनला सा। कल गया अच्छा तोरा बहुत जल्दी समझे हम चला, तुम घबरावा नहीं। कल गया अच्छा कल तोरा समझे हम चला तुम। वह हुआ यूं कि एक दिन तहज्जुद भी खत्म, फजर की नमाज भी गायब, और सुबह उठते हैं वो अल्लाह के वली बड़े परेशान हैरान। हाँ भाई कि फल्लां बाप कहने परेशान था की बोलून,
कि छोरे को कुछ नहीं मिली सर नए परेशान लागे छाते बताओ की बात थी। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि देखो आज हुआ यूं कि फजर तो दूर की बात है, तहज्जुद तो दूर की बात है, फजर की नमाज जो फर्ज है मेरे ऊपर वो भी छूट गई। मैं इसलिए हैरान और परेशान हूँ, जिंदगी में कभी मेरा छूटा नहीं था। तो उस औरत ने, उस माई ने कहा कि देख लिए आप अल्लाह के वली होने का दावा करते थे, ये अल्लाह का वली जो आप बने थे, विलायत जो हासिल हुई थी, वो मैंने जिंदगी में आपको कभी बगैर वुजू के खाना नहीं खिलाया था। मैं जब भी खाना बनाने बैठती थी पहले पाक होकर आती थी, पहले वुजू करती थी, फिर आपका खाना बनाती थी। जब जाकर के उस खाने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको विलायत का दर्जा दिया, आपको विलायत अता फरमाया। एक दिन बगैर वुजू का खाना खिलाया तो सारी विलायत चली गई। तो माओ बहनों, आप तमाम से गुजारिश है कि इन बातों को पल्लुओं में बांधें। आप चाहे तो अपने शोहर को वलीउल्लाह बना सकते हैं, आप चाहे तो अपने शोहर को कबाबी शराबी बना सकते हैं। आपके हाथ में है मामला, आपके हाथ में है। अगर आप में से हर एक ये तहिया कर ले कि अगर ऐसे नमाज नहीं पढ़ ले मगरिबा रात को खाना तो नहीं मिलता हूं, खाना बना लेना है, नेमत खाना ताला मार के चाबी अचराम पानी का चला जाए नमाज पढ़ल कि नमाज पढ़ी के बाद खाना मिल तो नहीं तो खाना नहीं मिले वाला छुन। तो क्या नहीं हो सकता है ऐसा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे भाई हम ये कह सकते हैं कि ऐश कमयाद में रात को खाना नहीं मिलता, तो ये नहीं कह सकते कि नमाज नहीं पढ़ा रात को खाना नहीं मिलता। इससे क्या पता चलता है कि दुनिया हमारी नजरों में अजीज है और अल्लाह की सारी आखिरत की सारी बातें हमारे नजरों में बेकार हैं। इससे ही पता चलता है ना। तो हम तमाम को इन सारी बातों पर खूब गौर व फिक्र करने की जरूरत है, खूब ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप सीधे लाइन पर आ गए, आपने अगर कंटिन्यू हमेशगी मुसल्ला बिछाना शुरू कर दिया, आपने खानगाही काम शुरू कर दिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप अमन व अमान कायम कर सकते हैं, आप चैन सुकून कायम कर सकते हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर वो ताकत रखी है, अल्लाह ताला ने आपको वो पावर, सुपर पावर बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। आपके अंदर बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने वो ताकतें और वुसअतें रखी है। आप पूरे फैमिली को लेकर के चल सकते हैं। वो कहावत में भी है, किस्सा भी है और ये हकीकत भी है कि एक मर्द पढ़ता है तो एक घर पढ़ता है, अगर एक औरत पढ़ती है तो 7 खानदान तलक उसकी बरकत जाती है। तो आप तमाम अमल करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोले ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को खूब अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़े दुआ पढ़े, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम माओ बहनों से ये आजीजाना गुजारिश है कि भाई आप अपने घरों में यकसुई के साथ और पाबंदी के साथ नमाज को शुरू करें। आपको किसी को दावत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अगर आप सास हैं तो आपकी बहू है, आपकी नमाज को देख करके यकीनन वो एक ना एक दिन नमाज के लिए खड़ी हो जाएगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी की बहू है, आपकी सासू मां नमाज नहीं पढ़ती है, तो आप शुरू करें, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके वो अड़ोस पड़ोस हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दैया आबे नमाज पढ़े ले। नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है, वो पेप्सी का ढक्कन खोला था कैसे छिस से निकले जी ना निकले। हमारे यहाँ नमाज का ये हाल हो गया। शबे बारात आते ही बोरमिया सब जने एक मार से लेना खड़ा रहे, एकदम हिलवो करे पड़वो करे, बार रात चले छी। अब बिहान जने हुए वाला रहे छी, सब जने सुतला था जो हर तक सुतलो रहे छी। क्या फायदा ऐसी इबादत करके? यही हुआ ना, कोई फायदा हुआ ऐसी इबादत करके? नहीं। अल्लाह के रसूल का फरमान भी है, इबादत थोड़ी सी करेंगे, लेकिन हमेशगी वाली होगी ना, अल्लाह को वो पसंद है। थोड़ी होनी चाहिए, यानी जो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फर्ज फरमाया है, उस 5 वक्त की नमाज कोई आप पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दे और कभी छोड़ने की नियत ना करें। करेंगे इंशाअल्लाह। बंद।